ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم باب یہ ہے کہ پیارے نبی بڑے مہمان نواز تھے۔ مہمانوں کی خدمت کرنا، مہمان نوازی کرنا، خوش دلی سے ان کا استقبال کرنا، اور جو کچھ ہو سکتا تھا مہمان کی خوشی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عملی طور پہ کر کے دکھایا بلکہ اپنے صحابہ کو بھی اس کی رغبت دلائی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی بنائے جانے کے بعد ایسا کرتے تھے، بلکہ جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ کو رسالت نہیں ملی تھی، آپ نبی رسول بنائے نہیں گئے تھے، اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی کی یہ صفت، یہ خوبی عربوں کے ہاں مشہور تھی۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے مہمان نواز ہیں۔ اسی لیے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی اور آپ گھبراہٹ میں غار حرا سے گھر آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اپنے ہلاکت کا ڈر ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اور پیارے نبی نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے ڈھانپ دو۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، ایسا آپ کی سوچتے ہیں کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ ہلاک نہیں ہوں گے، یا آپ کو کسی پریشانی، کسی دقت کی وجہ سے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہ سوچیں کہ آپ پسپا ہو جائیں گے، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ رشتہ داریاں نبھاتے ہیں۔ کئی باتیں بتائی، اس میں کیا بات بتائی؟ اس لیے اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا کیونکہ آپ رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں۔ کوئی آدمی کسی بوجھ تلے دبا ہے، کسی پریشانی، کسی دقت میں گھرا ہوا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کا بوجھ ہلکا کر، اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، اس کا ٹینشن اپنا ٹینشن بنا لیتے ہیں، یعنی اس کو اس سے چھٹکارا دلاتے ہیں۔ سماج معاشرے میں کوئی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی آزمائش میں مبتلا ہے، تو آپ اس کے ہیلپ کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے چھوڑ دے، بے یار مددگار چھوڑ دے، آپ ایسا نہ سوچیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ آپ مہمان نواز ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمان نوازی کرتے ہیں آپ۔ یعنی کیا پتہ چلا کہ رشتہ داری نبھانا، دوسروں کے کام آنا اور مہمان کا استقبال کرنا، مہمان نوازی کرنا، یہ لوگوں کو مصیبت سے بچاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، کسی پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں، تو یہ خوبیاں اپنائیں۔ اللہ کے نبی کی یہ صفات تب کی ہے جب ابھی آپ نبی رسول نہیں بنائے گے۔ یہ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پانے کے بعد آپ مہمان نواز ہو گئے، نبی بنائے جانے کے بعد آپ رشتہ داریوں کا خیال رکھنے لگے، نہیں، پہلے سے یہ عادتیں تھیں۔ اسی لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، آپ کے اندر تو یہ سب خوبیاں ہیں کہ آپ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہترین سنت ہے کہ آپ مہمان نواز تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی مہمان نوازی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں چند باتیں موٹی موٹی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، مہمان کون ہوتا ہے؟ مہمان کسے کہتے ہیں؟
ہمارے گھر کوئی بھی آدمی آئے جس سے ہم اتنا مطمئن ہے کہ یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تو وہ ہمارا مہمان ہو گیا۔ کون ہو گیا؟ ہمارا مہمان۔ مہمان ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے ہماری پہلے سے جان پہچان ہو، کوئی ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت کچھ سیفٹی کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہر آدمی کو گھر پر ہی لے آئیں، کوئی آفس میں مل لے گا، کوئی دکان میں مل لے گا، کوئی یعنی کسی دوسری جگہ میں مل لیتا ہے، لیکن وہ ہمارا مہمان۔ ہمارا کوئی کلائنٹ ہی آیا ہے، ہم سے ملنے کے لیے آیا ہے، ہم سے کوئی لین دین کرنے والا آیا ہے، تو وہ ہمارا کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر کے لیے سے کیا ہو گیا؟ ہمارا وہ مہمان ہے نا۔ اس کی ضیافت ہونی چاہیے، جیسا الگ الگ درجہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی آدھے پونے گھنٹے کے لیے آیا ہے تو آپ اس کو چائے پانی ناشتہ کرا دیں۔ ایک آدمی ٹھہرے گا، شام تک رہے گا، آپ اس کو کھانے پہ انوائٹ کریں، اس سے کھانے کا انتظام کریں۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ بہت جلدی میں ہے تو کم سے کم اس کو پانی ہی آپ پلا دیں۔ الگ الگ نوعیت ہو سکتی۔ ایک آدمی جو کسی ناحیے سے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو اپنے گھر پہ بھی لے جا سکتا ہوں، اپنے گھر پہ بھی لے جا سکتا ہوں، آپ اس سے بالکل مطمئن ہیں، آپ کو کوئی بہت آپ کے گاؤں کا نکل آیا یا آپ کی کوئی بچپن کا شناسا نکل آیا یا آپ کے فیملی کا کوئی ایسا ممبر جو اس کو پہلے سے جانتا تھا، آپ اس کو گھر پہ بھی لا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے الگ الگ درجے بن سکتے ہیں کہ مہمان کس کیٹیگری کا ہے۔ لیکن ایک موٹی بات جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کو پہلے سے جانتے ہوں تبھی ہم اس کو مہمان مانیں گے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ انسان ہے یا فرشتے۔ معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا، لیکن ان کے مہمان نوازی کے لیے کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ پورا بھنا ہوا بچڑا لا کر کے ان کے سامنے، فجاء بعجل حنین، بھن کر کے بچڑا لا کر کے رکھ دیا سامنے، لیجیے کھائیے۔ کہ جب ان لوگوں نے کھانے سے انکار کر دیا، مطلب وہ لوگ کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہے آگے، تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بات آئی کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ لوگ کھا کیوں نہیں رہے؟ تھوڑا سا انہیں یہ منظر دیکھ کر کے تھوڑا سا انہیں خوف لاحق ہوا۔ تب فرشتوں نے وضاحت کی کہ نہیں، ہم نہیں کھا سکتے ہیں، ہم ہیں کون؟ ہم فرشتے ہیں، یہ ہماری غذا نہیں، یا ہم کھانا نہیں کھاتے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اس کو نہیں کھاتے۔ تو وہاں دیکھیے ابراہیم السلام پہلے سے پہچانتے تھے کون ہے؟ نہیں پہچانتے تھے۔ مہمان نوازی آج اتنا ختم ہے یا اتنا مفقود ہے کہ آدمی عام طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ جس کو جانتے پہچانتے وہی ہمارا مہمان ہے۔ ایسا نہیں ہے، جس کو ہم نہیں جانتے پہچانتے ہیں، اگر ہمارے گوڈاؤن پر آ جائے، ہماری دکان پر آ جائے، ہمارے آفس پر آ جائے، ہمارے گھر پر بھی آ جائے، اور ٹھیک ہے تھوڑا سیفٹی کا خیال رکھتے ہوئے، کسی اجنبی آدمی کا آدمی گھر پہ نہیں لیتا کہ کیا پتا کون ہے، کس ارادے سے آیا ہے، خدشہ بحثیت ہو سکتا ہے، لیکن جہاں کم سے کم آدمی مطمئن ہے، دل مطمئن ہے، وہاں اس کی ضیافت وہ کرے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی جو مہمان ہوتا ہے وہ مہمان دوسرے ناحیے سے بڑا اہم ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارا کوئی رشتہ دار وہ ہمارے گھر مہمان بن کے آیا، تو ایک تو رشتہ داری کا حق ہی ہے نا، پہلے سے ہے، پلس وہ ہمارا مہمان ہمارے گھر ٹھہرنا چاہتا ہے، رکنا چاہتا ہے، اس کا اور خیال رکھا جائے گا۔ اس ناحیے سے کہ رشتہ داری بھی، اس کا بھی ثواب ملے گا، اور ٹھہر رہا ہے رک رہا ہے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ایک چیز اور ہے کہ خالص ایمان کے جذبے سے یہ کام کیا جائے، ثواب کے لیے، صرف ثواب کے لیے کیا جائے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے یہاں مہمان آ گیا، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ کسی کو ہم باقاعدہ مہمان بناتے ہیں، نے دعوت دی ہے، بلایا ہے کسی کو، شادی ہے، عقیقہ ہے، یا کوئی اور ایسا موقع ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا ہے، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس میں یہ سب شرط نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ مجھے بلائے گا تو میں اس کو بلاؤں گا۔ اس طرح کی فیلنگ پائی جاتی نا، ہمارا رشتہ دار ہمیں اگر بلاتا ہے تو ہم اس کی خوشی میں جاتے ہیں، اگر وہ نہیں بلاتا تو ہم بھی اس کو نہیں بلائیں گے۔ ٹھیک ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا دل نہیں ملتا، ایک جیسی کیفیت نہیں رہتی، آدمی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے ہی کسی کو مدعو کرتا ہے، کسی کو بلاتا ہے، لیکن خاص طور پہ جو ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہمارا جو خیال رکھتے ہیں یا ہم سے ان کو لگاؤ ہے، ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ان کا ہمیں بھی خیال رکھنا، ان کی مہمان نوازی کرنا، ان کی خاطر تواضع کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جو خیال میں رکھنے یا یاد رکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مہمان تو اپنے اسٹیٹس اپنے حساب سے بلا لیا، لیکن مہمان نوازی کرنے میں اس چیز کا خیال نہیں رکھتا ہے یا نہیں رکھ پاتا ہے۔ تو کبھی کبھی تو مہمان خود سے بھی سمجھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا خیال نہیں رکھ پا رہے، لیکن ادب یہ ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ ادب کیا ہے؟ اس کا خیال رکھا جائے۔ آپ نے اپنے گھر پہ دعوت میں
किसी ऐसे आदमी को बुलाया है जो पेशेंट है, किसी चीज की बीमारी में मुब्तला है, वो चावल नहीं खा सकता, वो ये चीज नहीं खा सकता, वो चीज नहीं खा सकता, तो आप खाना कैसे तैयार करेंगे? अपनी मर्जी से, अपना ख्याल करते हुए या उसका ख्याल करते हुए? जिसको आपने खाने को बुलाया है तो उसका ख्याल रखते हुए खाना बनाएंगे ना, उसकी तैयारी करेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो आदमी ख्याल रखे तो मेहमान नवाजी का हक वो अदा कर लेगा। लेकिन ये तब कब मुमकिन है? जब आदमी ईमान के जज्बे से, सवाब की नीयत से ये सब करे, बोझ समझ करके नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, हम सबकी इस्लाह करे, कि रिश्तेदारों में भी उनके यहाँ एक तरह से इंसाफ नहीं होता। यानी फला रिश्तेदार आ रहे हैं तो दिल खोल के रख देते, और दूसरे रिश्तेदार रहे हैं तो किसी में काम चला लो। अगर रिश्तेदार यानी ससुराल वाले आ रहे हैं तो दूसरे तरह की खातिर तवाज़ो होगी, और अगर रिश्तेदार कहीं और से आ रहे हैं तो दूसरे तरह खातिर। ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। आपके घर में ज़ियाफत या मेहमान नवाजी का एक मेयार होता है, एक मेयार, एक स्टैंडर्ड है। फिर उसमें जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है वो वही तासुर लेके जाए कि भाई हम इनके यहाँ पहुंचते हैं, जाते हैं तो दिल खोल करके मेहमान नवाजी करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नाराजगी है या आने वाला मेहमान जो है वो, उससे हमारा कोई जाती फायदा नहीं है, मालदार नहीं है या ऐसे भी कोई फायदा नहीं तो उसको थोड़े से निपटा दो। ऐसा नहीं, आपके घर का एक मेयार होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब ठीक है, कभी ऐसा होता है कि किसी मेहमान को कुछ ज्यादा वैल्यू दी जाती है दूसरे नाहिए से, इसमें गुंजाइश है, लेकिन ये नहीं कि कोई दिल दुखा के जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें एक गलती और लोग करते हैं, वो ये कि किसी को खाना खिलाएंगे, किसी को खाना खिलाएंगे तो अपने मेयार का खिलाएंगे, और नहीं तो खिलाएंगे ही नहीं, भूखा ही भेज देंगे। ये भी गलती है। जैसे मिसाल के तौर पर हमें इत्तला दिए बगैर ही अचानक हमारे घर पे कोई मेहमान आ गया, तो अब मेहमान नवाजी का तकाजा क्या है कि जो भी मयसर है बर वक्त जो मौजूद है उसके सामने आप पेश करो। कुछ बना सकते हो, अच्छे से अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, उसमें सवाब मिलेगा, अच्छे से अच्छा कर दो। लेकिन अगर इस पोजीशन में नहीं हो तो सिर्फ ये इस शर्मिंदगी में कि अभी बाद में जाके बोलेगा कि अरे दाल चावल खिला दी, अभी जाके बोलेगा कि किसी पे हमसे छुटकारा ले लिए, तो इसलिए आप खाना ही ना पूछें हालांकि खाने का वक्त है, तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, वो अगर जाके कहीं बोलता है बताता है तो उसकी अपनी कमजरफी है। ये सब चीजें गुनाह हो जाती है कि आदमी कहीं क्या खाकर आए वो भी जाके बताए कि फला आदमी ने मुझे ये खिलाया। भाई आप बिला इत्तला पहुंचे हैं किसी ऐसी जगह पे, तो आदमी की जो मैसर है घर में जो मौजूद है आदमी दे दिया, ठीक है। शहरों में थोड़ी सहूलत है कि 10-15 मिनट में आदमी कुछ मंगा सकता है बाहर से, रेस्टोरेंट होटल वगैरह से कुछ मंगा लिया, कुछ अच्छा कर दिया। लेकिन किसी ऐसी जगह पर जहां इसका भी इम्कान नहीं है, तो जो मयसर है वो आप उसको तनाउल करें, उसको कोई शिकवा शिकायत न रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा घर से निकले, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की वजह से निकले। किस वजह से? भूख की शिद्दत की वजह से। आपकी नजर पड़ी, थोड़ी देर के बाद देखा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, तो पूछा क्या हाल चाल है, खैरियत? उन्होंने बताया कि अल्लाह ने बड़ी शिद्दत की भूख लगी हुई है। फिर थोड़ी देर रुके तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला नमूदार हुए, उनसे पूछा तो उन्होंने भी कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बात है और बहुत शिद्दत की भूख लगी है, घर से निकल आया। तीनों लोग जाते हैं एक सहाबी के पास। जिस सहाबी के घर पहुंचते हैं तो इत्तेफाक से वो सहाबी घर पर नहीं गए, वो सहाबी वहां मौजूद नहीं थे। तो उनकी अहलिया ने जब देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो कहा कि इस्तकबाल किया, जैसे खुशामदीद करते हैं, इस्तकबाल किया उनका, और बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपके शोहर कहाँ है? तो कहा अल्लाह के नबी पानी लाने गए। कहाँ गए वो? पानी लाने गए। पानी सबके घर में अवेलेबल नहीं रहता था, कुआं रहता था कुछ कुछ मसाफत पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। फिर हर कुएं का पानी पिया जाए ऐसा भी जरूरी नहीं, या उतना ही अच्छा रहे ऐसा जरूरी नहीं, बल्कि वो मीठा पानी लाने गए थे जहां से भी गए। थोड़ी देर के बाद वो सहाबी रसूल पहुंच जाते हैं। अब वो देख करके अल्लाह के नबी को देख रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक उमर को देख के इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि खुशी से झूम उठते हैं कि मुझसे अच्छा मेहमान नवाज कौन है, यानी मैं कितना खुश नसीब हूं कि मेरे मेहमान कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खुश होते हैं, खुशी से बिल्कुल जाते हैं जल्दी से अपने बाग से वो खजूर की पूरी एक टहनी ही तोड़ लाते हैं, और उसमें
पक्की खजूर भी है, कुछ कच्ची खजूर भी है, कुछ और कच्ची खजूर है, तीनों तरह की खजूर देते, ला करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर देते। फिर उसके बाद फौरन वहां से निकल, यानी खजूर खाइए, तब तक स्टार्टर कह लीजिए, आप खजूर खा रहे हैं, हाँ, और जल्दी से छुरी निकालते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने ही फौरन जाते हैं, जहाँ जानवर बंधे रहते उस तरफ। तो अल्लाह के नबी ने कहा इय्याक वल हलूब, क्या कहा, इय्याक वल हलूब, ये देखो किसी दुधारी बकरी को मत ज़बह करना। उनका जो शौक देखते हैं कि ये बिल्कुल यानी जोश और खुशी से ये कुछ भी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी क्या पेश कर दूं, यही फीलिंग होनी भी चाहिए कि मेहमान आया है तो उसके सामने जितना जो हो सके आप पेश करें। अच्छा, यह एक बात और समझे, इसराफ और फजूल जिसको बोलते हैं ना, इसराफ करना, फजूल खर्ची करना, और क्या जरूरत है इतना कर देना उतना कर देना, ये मेहमान नवाजी में नहीं है। इस बात को समझें आप, मेहमान के सामने आप जितना ज्यादा पेश कर सके पेश करें, उसमें से जितने उसको जरूरत रहेगी वो खा लेगा, बाकी क्या करना है आपको अपने इस्तेमाल में लाना है ना, कहीं बात के लिए थोड़ी ना चले जाए। लेकिन ये सोच करके कि बस 2 आइटम कर दो, 1 आइटम कर दो, खा दो, और इससे ज्यादा बनाना, इसको फजूल खर्ची समझना, ये गलत है। मैं समझा कि वो बात समझे, कंफ्यूज ना हो। मेहमान के सामने आप 2 आइटम पेश करें, 3 आइटम पेश करें, 5 आइटम पेश करें, ये कोई आयत की बात नहीं, ये कोई आयत की बात नहीं है। आप देखिए खजूर भी पेश किया है, अलग से गोश्त का भी इंतजाम कर रहे हैं, इसमें कोई शर्मिंदगी, कोई किसी तरह की आयत की बात नहीं है, बस वो जाया नहीं करना है। अब ये सोच करके कि जाया हो जाएगा, नहीं खाएंगे, फेंका जाएगा, आप ये सोचे कि 1 ही 2 आइटम पेश कर दूं, तो ये इसकी कोई शरई दलील नहीं है। मेहमान क्या पता भाई इसको क्या चीज पसंद आ जाए, तो आपके पास जो कुछ मैसर है आप उसको पेश करें, ठीक है। एक जहन आपका भी जहन काम करता है कि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा या ये जाया हो जाएगा, आपका भी दिल एक मौके पे जाके समझता है ना कि इतना सब कुछ होगा तो हो सकता है वेस्ट चला जाए। लेकिन इस बात की गुंजाइश है कि आप मेहमान के सामने ज्यादा से ज्यादा कितनी चीजें, अच्छी से अच्छी चीजें पेश कर सके, और उसमें कोई कबाहत की बात नहीं है कि आपने चिकन का भी इंतजाम किया है, मछली का भी इंतजाम किया है, मटन का भी इंतजाम किया है, मीठे का भी इंतजाम किया, फ्रूट का भी इंतजाम किया है, सलाद का भी इंतजाम किया, ये कोई गुनाह वाली बात नहीं। ये असल में इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग इसको भी क्या समझते हैं, इसको फजूल खर्ची में शुमार करते हैं, ये सब क्या फजूल खर्ची है, लेकिन मेहमान नवाजी के बाब में ये कोई फजूल खर्ची नहीं है। उसको आप पेश करें, जितना खाना वो खा लेगा, जो दूसरों को यानी जो बच जाएगा आपको खाना है या और लोगों को खिलाना, आप खिला दें, इसमें कोई आयत की बात नहीं है। बहरकैफ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सहाबी ने देखा, अल्लाह के नबी ने देखा उस सहाबी को कि ये छुरी लेके जा रहे जबा करने, तो प्यारे नबी ने कहा इय्याक अल हलूब, ये देखो दुधारी बकरी जबा करने से इज्तनाब करना, परहेज करना। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि ये फर्क मोहब्बत में, मोहब्बत और खुशी से हो सकता है जल्दबाजी में क्या करें, जो बकरी मिले फौरन उसको जबा कर दें, तो उसमें इनका नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो बकरी दूध दे रही है उससे ज्यादा फायदा है ना, तो अब वो दूध का आना सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस सहाबी से ये बात कही। बहरकैफ फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गोश्त पेश किया गया, अबू बकर ने खाना खाया, उमर ने खाना खाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी में से, उसी खाने में से थोड़ा सा एक रोटी का टुकड़ा लिया और कुछ हिस्सा लिया। अल्लाह के नबी ने अपने उसी सहाबी से कहा कि ये पहुंचा दो फातिमा के यहाँ। कहाँ पहुंचा दो, बेतकल्लुफी थी, और असल जिंदगी का मसला बेतकल्लुफी ही में, तकल्लुफात जहाँ आ जाते हैं वहां घुटन वाला माहौल बन जाता है। बेतकल्लुफी होनी चाहिए, प्यास लगी पानी मांग लेने में क्या हर्ज है, पानी दे दीजिए, या भूख लगी है आप अपने किसी अजीज के, अपने किसी करीबी हैं, वहां अगर आप कह दें कि कुछ भूख लगी तो देखिए खाने के लिए मिल जाए, तो क्या हर्ज है इसके अंदर। हम सब मुसलमान भाई हैं आपस में एक दूसरे, आप भी कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ। इसमें जो तकल्लुफात में मुब्तला हो जाते हैं कि अभी मैं ऐसा बोलूं तो ये क्या कहे, ठीक है किसी के बारे में पता है कि वो आदमी इसका यहाँ खाना खा लो तो 10 जगह बताएगा, ये बदनाम कर देगा, तो वहां आप इज्तिनाब करें, अलग मसला है। आपको पता है इसको बोल दूंगा उसको बुरा लग जाएगा, तो अलग मसला है। लेकिन आमतौर पर माहौल कैसा होना चाहिए, बेतकल्लुफी वाला माहौल होना चाहिए। आप देखें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, अबू बकर उमर जैसे अजीम शख्सियतें एक सहाबी के यहाँ पहुंच गए और उन्होंने बताया भी कि हम आए हैं आपके यहाँ, और उसके बाद खाना खाए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास भेज दो, वो भी खा ले। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके पर याद दिलाया अपने सहाबा को कि ये जो नेमतें मयस्सर है, जो हम खा पी रहे हैं, इससे मुताल्लिक भी सवाल किया जाएगा, इससे मुताल्लिक भी
सवाल है जो हम खाते पीते हैं, ये नेमतें हैं ना अल्लाह ताला देता है। कभी अल्लाह ने नमाज रखा है तो इस जज्बे से भी चीजों को देखना चाहिए कि कितने कितने लोगों को ये सारी चीजें साल साल मैसर नहीं होती, नहीं मिलती। उनकी इनकम ही इतनी है कि उनको खाली गुजर बसर करना है। हम जितना खाते पीते अल्लाह ताला ने दे रखा है, नमाज रखा है, उस पर जितना अल्लाह का शुक्र अदा करे कम है ना। बहुत सारे लोग उनको नहीं मैसर, उनकी समाज में उनकी जान पहचान भी इतनी नहीं होती कि उनको उससे आए दिन मिलता रहे। नहीं, वो बेचारे मिस्कीनियत की जिंदगी, गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा सबसे अच्छा वलीमा वो है जिस वलीमे में मिस्कीनों को याद रखा जाए। भाई सबसे बुरा वलीमा वो है जिसमें मिस्कीन को छोड़ दिया जाए। क्या मतलब? सबसे बुरी दावत वो है जिसमें मिस्कीनों का ख्याल रखा जाए। वो एक अच्छा मौका होता है कि मिस्कीन को भी शामिल कर ले। वलीमे में आदमी अच्छा अच्छा खाना तैयार करता है, अच्छे खाने का इंतजाम करता है, या ऐसी कोई दावत ले रहा है आदमी, उसमें अच्छा से अच्छा एहतमाम करता है, तो उसमें गरीब, मिस्कीन, मुहताज इन लोगों को शामिल कर ले, उनको मौका मिल जाएगा खाना खाने का, अच्छा खाना खाने का। तो ये सब सारी चीजें हमें मोटी मोटी बातें याद रखनी चाहिए। मेहमान नवाजी के बाब में एक बात ये भी है कि मेहमान हमारे यहाँ अगर आता है तो उसका हक है, उसका हक है। इसमें कोई आदमी अगर बखीली करता है, कंजूसी करता है, तो वो ये समझे कि वो मेहमान का हक मार रहा है। ये जायज नहीं है कि आप मेहमान को मुंह बना करके उसका इस्तेकबाल करें और नापसंदीदगी का इजहार करें कि कहाँ से आ गए। ये भी बुराई है कि लोग चाहते हैं कि जो मेहमान आए वो इत्तला दे करके आए। अब आप बताएं इस्लाम कब आया? इस्लाम कब आया? 1400 साल पहले ना। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले। 1400 साल पहले कौन सी टेक्नोलॉजी थी? क्या आदमी बता दे कि मैं कल आ रहा हूँ? कुछ था बताने का इंतजाम? ठीक है, यह आज आया है, लेकिन तालीमात तो तभी से है ना। तो ये बताने वाला जो एक जहन बन रहा है, आसानी हो जाती बिला शुबहा, लेकिन किसी ने नहीं बताया है तो उस पर झट से शिकवा कर देना ये दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है। कि मेहमान से ये कहने जा रहे पहले बता दिए होते, पहले अब तो आ ही चुका है ना, अब तो आपके घर पे पहुंच चुका है, अब उससे ये कहने का क्या फायदा कि पहले बता दिए होते। ठीक है, आप अपना जज्बा उसके सामने पेश कर सकते हैं कि अगर पहले से इत्तला होती तो कुछ अच्छा अच्छा बना लेते, कुछ और कर देते। तो अभी आपको जो मौका मिले जितना कर सकते करें, वरना वो आदमी भी समझ रहा है ना कि मैं पहले से बता के आता तो अच्छे से चल लिख सकता, कुछ और मिल जाता मुझे। लेकिन अगर वो नहीं बता कर आ रहा और आपका ये शिकवा जानता है कि आप ये शिकवा करोगे, आप ये शिकायत करोगे, तो मुमकिन है कि अगली बार आपके घर के पास से गुजर जाए वो, और सिर्फ इस वजह से ना आए कि अभी आप कहोगे कि बता के आना चाहिए। अभी आप क्या कहोगे कि बता के आना चाहिए। तो कुछ चीजें अपने यहाँ गैर इस्लामी यानी इस्लामी तालीमात से मेल नहीं खाती हैं, लेकिन लोग जबान पर ये आदत है। एक चीज और भी है कि अगर फरावानी है और मयसर है तो मेहमान के सामने चीजें पेश करें, उसको तकल्लुफ में ना डालें। तकल्लुफ में डालने का मतलब क्या? मेहमान से ये पूछना कि क्या लोगे, चाय लोगे कि आइसक्रीम मंगाओ, और दोनों दोनों दिल कहे तो उसका दिल दोनों कह रहा है, क्या करेगा? अब आपने उससे ऑप्शन दे दिया चाय मंगाओ कि आइसक्रीम मंगाओ, दोनों मंगा दो भाई। उसका दिल कहेगा तो वो खा लेगा, उसका दिल कहेगा हाँ कहीं ये बात फिर से वजाहत करूँ। अगर आपको यकीन है कि चीज बेस्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ये आपको पता है कि शायद मैं जो चीज मंगा दूंगी इसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। जैसे आदमी शुगर पेशेंट है, आपने मंगा दी, आपने चाय मंगा दिया, शक्कर वाली चाय मंगा दी, तो वो नहीं पिएगा। तो वहां पूछने की गुंजाइश है ताकि वो मेहमान नवाजी में आसानी हो, लेकिन हरज में नहीं डालना चाहिए। हरज में डालने का मतलब ये खाने का टाइम है, आप उससे कह रहे हैं कि ठंडा मंगा दूं कि कॉफी मंगा दूं, और उसका दिल क्या कह रहा है खाने का टाइम, तो क्या खा ले वो, खाना खा ले। तो ये पूछने उछने वाला इसमें थोड़ा सा जहन से काम लेना चाहिए कि मेरे पूछने के बाद मैं मेहमान नवाजी ज्यादा करूंगा या वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। वो तकल्लुफ में पड़ के हो सकता है उसको भूख लगी खाना खाने का, और आप कह रहे हैं चाय लेंगे कि कॉफी लेंगे, अब दोनों में से एक ही बोलेगा वो। आपने ठीक कॉफी पिला दी, चाय पिला, टाइम किसका था? खाना खिलाने का। तो इसमें थोड़ा सा होश में रहते हुए आदमी को काम लेना चाहिए कि मेहमान को जिस वक्त वो पहुंच रहा है उस हिसाब से उसकी मेहमान नवाजी की जाए। एक चीज और भी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो मेहमान है वो अपने साथ किसी और को भी ले आया है। कि मुमकिन है इस तरह की सूरत कभी पैदा हो जाती है कि जो मेहमान है उसके साथ भी कोई एक और रहे, तो ज़ियाफत के वक्त उसको भी बातों में शामिल रखें। ऐसा नहीं कि इनको तो मैं पहचानता नहीं,
इनको तो आप पहचानते हैं, तो अब मैं आपकी मेहमान नवाजी में भरपूर मेरी तवज्जो है, और वो आदमी बेचारा अजनबियत महसूस कर रहा है, उसको अंदर से इंसल्ट फील हो रही है कि कहाँ इसके साथ में चले आया। ये तो पूरी तवज्जो किसको मिल रही है, जिनकी इन दोनों की जान पहचान, बल्कि उसको आप शामिल कर लें, गुफ्तगू में शामिल कर लें, बात में शामिल कर लें, उसको भी ऐसा लगे कि मैं भी इनका क्या हूँ, मेहमान हूँ। ठीक है, आपकी जान पहचान है, लेकिन उसको भी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं सिर्फ ऐसी जबरदस्ती लटक कर आ गया हूँ साथ में, बल्कि उसको भी लगे कि हाँ मैं किसी के यहाँ मेहमान बना। तो ये मोटी मोटी कुछ बातें थी जो अपने लोग ख्याल नहीं कर पाते, तो उनकी तरफ तवज्जो दिलानी थी। अब आइए मैं आपको बताऊं इसका फायदा क्या है मेहमान नवाजी का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके से फरमाया कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफा, कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो अपने मेहमान की इकराम करे। इकराम, खाना खिलाए, पानी पिलाए नहीं, क्या कहा, इकराम करे, उसको उसको इज्जत दे। सबसे पहली चीज क्या, उसको इज्जत दे, उसको अहमियत दे। फिर उसमें वो चीज शामिल है कि खाने के टाइम में खाना खिलाए, या ठहरने के टाइम में उसको ठहराए, उसका इंतजाम करे, ये सारी चीजें उसमें शामिल। इकराम के अंदर सारी चीजें, उसको आपके यहाँ आकर के खुशी होनी चाहिए। इकराम में ये सारी चीजें शामिल, एक दिल उसका खुश होना चाहिए कि मैं किसी के यहाँ मेहमान बना। उसको हर वो चीज जिससे उसको खुशी आप पहुंचा सकते हैं, जायज दायरे में रहते हुए आप उसको पहुंचाए। जायज दायरे में क्यों कह रहा हूं मैं, तो मुमकिन है आपका मेहमान या आपके यहाँ बनने वाला आदमी वो कुछ नाजायज फरमाइश भी करे, तो आपको उसमें नहीं जाना है, लेकिन जायज दायरे में रहते हुए अपने मेहमान को जो खुशी दी जा सकती है, वो सारी चीजें इसमें शामिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मेहमान का ख्याल रखते थे कि एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान है, और इत्तेफाक से ऐसे वक्त में आए कि अल्लाह के नबी के पास कुछ था नहीं उनकी जियाफत करने के लिए। फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि जाओ देखो घर में कुछ हो तो ले आओ इनकी जियाफत के लिए। बारी बारी बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्महातुल मुमिनीन में से सबके घर गए पूछने के लिए, एक मेहमान आए हैं कुछ है, एक मेहमान आए कुछ है, और सब सारे घरों से यही जवाब मिला कि कुछ नहीं है सिवाय पानी के, इल्लल मा, सिवाय पानी के और कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेहमान की ज़ियाफत के लिए सिवाय पानी के और कोई चीज मैसर नहीं है, तो अल्लाह के नबी ने फिर भी मेहमान से माजरत नहीं की। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से पूछा कि कोई है जो हमारे मेहमान को अपना मेहमान बना ले। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अंसारी साहबी थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल आपका मेहमान मेरा मेहमान नहीं, मैं इसकी ज़ियाफत करूंगा। और उसके बाद फिर उन्हें लेकर के अपने घर गए। अपने घर जब लेके गए, अब देखिए लेके चले गए, वहां जब घर पे पहुंचे तो अपनी अहलिया से उन्होंने पूछा कि मैं एक मेहमान लाया हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान बताया मुझे, तो इनकी ज़ियाफत करनी है। तो उन्होंने कहा कि घर में सिवाय इतना खा लेंगे जो खाना बच्चे खा लें, और घर में कुछ है नहीं। तो उन्होंने मशवरा किया, आपस में मियाँ बीवी ने मशवरा किया क्या किया जाए, तो मेहमान आ गए, मेहमान से तो नहीं कह सकते कि हमारे घर में थोड़ा सा खाली खाने के लिए। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि देखो ऐसा करो कि जब मेहमान के खाने का वक्त होगा, उससे पहले कहा कि बच्चों को सुला दो, बच्चों को किसी तरह से सुला दो, बच्चे जब सो जाएंगे तो हम खाने बैठेंगे, और जब खाने बैठेंगे तो वो खाना भी इतना ही सा है कि मेहमान खाली खा सके, उसके साथ अगर मेजबान भी खाए तो वो नहीं हो पाएगा। तो जब खाने लगेंगे तो चिराग बुझा देना, उसको सही करने के बहाने उसको क्या कर देना, बुझा देना। चिराग बुझा देने का मतलब, ये लाइट का जमाना तो था नहीं, वो चिराग जलाया जाता था, और वो चिराग की इस्लाह होती थी, उसको दुरुस्त किया जाता था सही से, उसका उसमें जो रोशनी जहाँ से पैदा होती है वो सही से चले, तो उसको बनाया भी जाता था। तो उसको इस्लाह करने के बहाने जब खाने के लिए बैठे तो उस खातून ने क्या कर दिया, उसको बुझा दिया। अब हो गया अंधेरा, अधेरे अधेरे में मेहमान भी बैठे हैं और मेजबान भी बैठे, लेकिन मेजबान सिर्फ खाने की एक्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिर्फ खाने की प्लेट में हाथ डाल रहे हैं, लेकिन खाना नहीं खा रहे हैं, और मेहमान को मैसेज जा रहा है कि शायद इसमें से ये भी उठा उठा करके खा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने खाना खिला दिया अल्लाह के नबी के मेहमान को, जो उनके मेहमान बन गए थे। अल्लाह ताला को इन दोनों की ये अदा इतनी पसंद आई कि इस तरह से उन्होंने अपनी इज्जत की भी हिफाजत की, और अल्लाह के नबी की मेहमान की ज़ियाफत भी कर ली। उसके सामने उज़्र या बहाना नहीं करना पड़ा
कि नहीं है हमारे पास, ऐसी कोई ये सब मुश्किल कभी आ जाती है इस तरह से, लेकिन होशमंद अच्छी नियतों वाले इसको क्या करते हैं, संभाल लेते हैं, उसको बयान करने की जरूरत नहीं रहती है। बड़ी खुश उसलूबी के साथ उन मियाँ बीवी ने मिल करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान को खाना खिला दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन फरमाते हैं कि फज़हिकल्लाह, तुम लोगों की ये हरकत देख के अल्लाह ताला हंस पड़ा, अल्लाह ताला ने हंस दिया, यानी पता चला अल्लाह ताला भी हंसता है। क्या मालूम हुआ, अल्लाह ताला भी हंसता है। और अल्लाह ताला हंसा, अल्लाह ताला ने ये बात बताई, तभी तो नबी को पता चला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पता चला, यानी वही आई और बताया कि देखो अल्लाह ताला ने इनकी ये हरकत देख करके, अल्लाह ने इनका ये अमल देख करके अल्लाह ताला हंस पड़ा। और अल्लाह ताला ने तो कुरान में आयत नाज़िल की, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, वयुसिरून अला अनफुसिहिम, कि ये सहाबा ऐसे हैं कि ये अपनी जात, अपनी जरूरियात पर दूसरों को तरजीह दे देते हैं। दूसरे खा ले, दूसरे पी ले, अपने आप को इतना कंट्रोल में रखते हैं कि दूसरों को तरजीह देते हैं। और फरमाया वयुसिरून अला वलौ कान बिहिम खसासा, गरचे ये खुद जरूरतमंद होते, उस दिन तो उनके घर की हालत ये थी कि थोड़ा सा खाना था, अपना भी नहीं खा पाते, बीवी भी नहीं खा पाती, बच्चे खा लेते, लेकिन अपने बच्चों को भी नहीं खिलाया। अल्लाह के नबी को मेहमान आया तो मेहमान खा ले, ये ज्यादा जरूरी है। यहाँ किसी के जहन में ये बात आ सकती है, ये आती है, बाज लोग उलमा से जुड़े हुए नहीं होते, कि एक बड़ा आदमी खाना खाए और एक बच्चा खाना खाए, तो बच्चों को खिला देना चाहिए था, उनसे माजरत कर लें। देखिए ऐसा नहीं, ये डेली का मामूल तो है नहीं, ऐसा नहीं ना कि रोज होने वाला है। कभी कभी इस नाहिए से किसी चीज को देखना चाहिए कि अच्छा ये आज ऐसा हो रहा है, वक्ती तौर पर ऐसा हो रहा है, और इसमें ईमान के जज्बे से चल करके जो काम कर लेंगे उसका जो फायदा है वो फायदा इसमें नहीं हासिल। अपने बच्चों को हम डेली खिलाते हैं, लेकिन नबी का मेहमान हमारे घर मेहमान बनकर डेली तो आने वाला नहीं, कि रोज आएगा कि हम उस परेशानी को जाकर के जिक्र करें कि अल्लाह के नबी हम अपने बच्चे को खाना खिलाएं या आपके मेहमान को खाना खिलाएं, नौजुबिल्लाह, ऐसी तो कोई बात थी नहीं। तो सहाबी रसूल ने इस बात को पसंद किया कि अगर आज मेरा बच्चा या आज मेरे बच्चे भूखे भी रह जाए तो भी अल्लाह के रसूल के मेहमान की जियाफत होनी चाहिए। और ये चीज इतनी पसंद आई कि देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल कर दी, और जब तक कयामत नहीं कायम होती ये कुरान की आयत पढ़ी जाएगी, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि ये सहाबा ऐसे सहाबा हैं जो अपनी जरूरत पर दूसरों को तरजीह देते हैं, गरचे खुद ही ये जरूरतमंद होते हैं। एक बात और कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है, खुशखबरी दी है उन लोगों को जो लोगों को खाना खिलाते हैं, सलाम को रवाज देते हैं, और रात में उठ करके तहज्जुद का एहतमाम करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बशारत दी है। तो इन तीन कामों में से एक काम क्या है, खाना खिलाना, लोगों को खाना खिलाना। तो मेहमान नवाजी का काम ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। अगर आदमी उसने नीयत अच्छे जज्बे से काम अंजाम देता है तो अल्लाह ताला इस नेकी की वजह से हमें और आपको जन्नत में दाखिला दे सकता है। लिहाजा इसका हमें और आपको ख्याल रखना चाहिए। कुछ बातें और इस हवाले से इंशाअल्लाह वो बातें अगले दर्स में आएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझने, अपनी जिंदगी में उसे बरतने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।